Take us to the first day of Srina Villas. क्या हुआ था? When I started hospitality and मेरा first guest उस property में जो मैं पहले रन करती थी और मुझे कुछ नहीं आता था, जितना मैं hotels में रही थी ना, मैंने बस उतना experience gather किया था कि ये experience जो मुझे मिला है वो guest को देना है। तो my first thing was an apology letter in the room कि sorry but this is like my first client, this is my first venture and अगर कुछ गलत हो गया तो I am really sorry। कौन से सीजन्स हैं जिसमें हमें कॉर्बेट विजिट करना चाहिए? जनरली लोग जब अगर आपको हाथी भी देखना है और आपको काफी वाइल्ड लाइफ देखनी है तो आप जी। मार्च टू जून आ सकते हैं, उसमें आपको काफी वाइड वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ नजर आती है। रोल ऑफ योर टीम इन रनिंग Srina Villas. आई एम नथिंग विदाउट माई टीम। मैं क्या करूँगी? आई एम जस्ट दी ओनर, आई कैन मैनेज थिंग्स, बट मैनेज थिंग्स इज द थिंग्स तो वही बना रहे हैं ना, कर तो वही रहे हैं, बट विदाउट माई टीम आई एम नथिंग। For someone who has never been to Corbett, right? How would you describe the jungle in your own words? I would describe Corbett as heaven on earth. It is Okay. one of the, I think, the first national parks of India, and it is just beautiful. It has everything from dense forests to great reservoirs to a huge Ramganga dam to a river flowing across the forest. And like, it's just beautiful. It has everything from mountains to grasslands to river to a huge dam. Everything is there. It's just heaven on earth. And especially winters in Corbett is beautiful. And like for our guests, like for our viewers, basically who are very, who like to go close to the nature or who like wildlife, beyond tigers, कॉर्बेट में और क्या-क्या देखने मिलता है? See, beyond tigers, Corbett में देखने को बहुत कुछ मिलता है. There is like if you come in summers, there is a lot of elephants. There are a lot of elephants. Then there is sloth bears. There is a huge variety of birds. Over 300 other species of birds are seen in Corbett, and it is actually like foreigners really prefer to come to Corbett to do a lot of birding. And yes, in monsoon there are a lot of different species of snakes, from king cobra to Russell vipers. So yes, there is a lot to see and explore Corbett, and it has a wide variety of deers as well. So from like hog deer to sambar deer, you get a lot of deers as well. So you see, there's a lot of, you can see in Corbett, it's not just about tigers. It has never been about tigers. It's always been about how the landscape is, how beautiful the place is, and a wide variety of animals. Plus, you see leopards as well. You don't see them often, but you do, and because they're very shy. But it is a great place to visit and to explore. And Sri Rupa ji, like if somebody is planning their first trip to Corbett, right? कितने गेट्स हैं, कहाँ से जाना है? Tell us more about that. कॉर्बेट में बहुत सारे गेट्स हैं, बट जो मेन ज्यादातर गेट्स माने जाते हैं, वन इज द टिकाला जोन विच इज द धनगढ़ी गेट, जिसमें आप अगर डे विजिट कर रहे हो तो आपको कैंटर से जाना पड़ता है, एंड अगर आप नाइट स्टे, क्योंकि दैट इज आप एक कॉर्बेट एक लौता पार्क है जिसमें आप अंदर रुक सकते हो, एक फॉरेस्ट के अंदर जंगल के जाकर आप अंदर? रुक सकते हो। हाँ जी, ओह, यू कैन, डिकाला जोन में आपके 4-5-6 फॉरेस्ट रेस्ट हाउसेज हैं, फ्रॉम सुल्तान टू गैरल टू सरअब्दुल्ली टू खिनानौली टू डिकाल। तो आप उसके अंदर जाके रुक सकते हो, आपकी सफारी अंदर से ही होगी, आप वहीं रहोगे, वहीं खाओगे, पूरा लोन नेटवर्क में रहोगे, जिससे आप एक्चुअली डिटॉक्स हो जाओगे। एंड right. एंड देन ऐसे डिकाला जोन है, एंड देन देयर इज बिजरानी जो आमडंडा गेट है, उसमें भी एक फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है, बिजरानी एंड मलानी। देन देयर इज गर्जिया गेट, एंड देन देयर इज झिरना एंड ढेला गेट, जो मेन गेट्स हैं कॉर्बेट के, जो ये हैं। बाकी दुर्गा देवी गेट भी है, वहां पे भी आप अंदर जाके रह सकते हैं। सो मल्टीपल गेट्स हैं, एंड अगर जैसे लोग बोलते हैं कि अंदर कैसे रहेंगे, जंगल में रहने में डर लगता है, तो ऐसा कुछ नहीं जी, है, बहुत जी. सेफ है, फेंस्ड है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई फील कि लाइफ में एक बार जरूर एक्सपीरियंस करना चाहिए कि आप अंदर जाके फॉरेस्ट में रह रहे हो।
क्योंकि ज्यादातर जो और हमारे नेशनल पार्क्स है उनमें आप बाहर रुकते हो होटल्स में या जी, रिसोर्ट्स में और आप डे विजिट करते हो। कॉर्बेट एक या इकलौता पार्क है जहाँ आप ये कर सकते हो, आप अंदर जाके एंड रुक सकते हो। एंड अगर छोटे बच्चे साथ में ट्रैवल कर रहे हो, राइट? सो क्या ये फॉरेस्ट के अंदर रुकने वाले गेस्ट हाउसेस सेफ हैं छोटे बच्चों के लिए भी? एब्सोल्युटली सेफ है। मेरी डॉटर 45 डेज की थी जब मैं उसको अंदर लेके गई। मैं खुद जी, 40 दिन की थी जब मैं जंगल के अंदर गई। वाओ! एब्सोल्युटली सेफ है, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स एब्सोल्युटली किड फ्रेंडली। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। एवरीबॉडी इज वेरी जी, हेल्पफुल एंड वेरी अकोमोडेटिंग। ओके। एंड कौन से सीज़न्स हैं जिसमें हमें कॉर्बेट विज़िट करना चाहिए? मेरा फेवरेट तो विंटर्स है बिकॉज आई लव द ओके, लाइट। बट जनरली लोग जब अगर आपको हाथी भी देखना है और आपको काफी वाइल्ड लाइफ देखनी है तो आप जी, मार्च टू जून आ सकते हैं। उसमें आपको काफी ओके। वाइड वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ नजर आती है। क्योंकि विंटर्स में ऐसा है कि बेसिकली इफ यू आर ट्रैवलिंग विद फैमिली, इट कॉर्बेट इज इन द हिमालयन फुटहिल्स, राइट? सो यस, बेसिकली इट मस्ट बी वेरी वेरी कोल्ड, एज आई इट्स नॉट वेरी वेरी अंडरस्टैंड। कोल्ड बट इट इज समथिंग आई रियली एंजॉय। बट या अगर आपको बहुत ठंड लगती है तो आप मार्च से आओ। बट उससे पहले फिर आप बट इट्स नाइस। इट्स लाइक द डेज आर वेरी सनी, दे आर वेरी वेरी सनी, सो इट्स ओनली अर्ली मॉर्निंग चिल एंड लेट इवनिंग्स जो थोड़ी ठंड लगती ओके, है। यस। जी। And Sri Rupa ji, what is this thing about Dikala? Everybody is crazy about Dikala and it gets booked so fast that you never get a chance to go to Dikala. ऐसा क्या है वहाँ पे? डिकाला में ऐसा क्या है? डिकाला में आप सोचिए कि डिकाला एक एक जन्नत है हमारे। एक एक ऐसा हेरिटेज है जो इंडिया के पास है। एंड इसलिए बहुत जल्दी बुक होता है क्योंकि बहुत लिमिटेड रूम्स हैं, बहुत ही ज्यादा लिमिटेड रूम्स है। एंड अराउंड 20 रूम्स है डिकाला फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में। बाकी किन्नानौली इज लाइक बुक फॉर थ्रू वीआईपी। सरबुली में 4 हैं, गैरल में है कुछ रूम्स, सुल्तान में 2 हैं। तो ऐसे मल्टीपल रूम्स हैं पर सारी जल्दी से बुक हो जाते हैं विद इन सेकेंड्स कि क्योंकि डिमांड इतनी ज्यादा है, सप्लाई बहुत कम है, तो सबको जंगल जाना है, तो इसलिए ये हो नहीं, बट जाता है। जंगल तो वैसा ही होगा। आप किसी भी गेट से जाएंगे कॉर्बेट के तो जंगल तो वही दिखने वाला है। फिर डिकाला नहीं, में तो क्या स्पेशल डिकाला है? में ऐसा क्या है? डिकाला में जैसे आप अंदर घुसते हो, आप 30 किलोमीटर अंदर डिकाला जोन में जाते हो, आपके एक जी, साइड पे पूरा ग्रासलैंड्स है एंड ओके, जिसको हम चौड़ कहते हैं। एंड चौड़, हाँ, तो बहुत वहां पे ह्यूज ग्रासलैंड्स है। ग्रासलैंड के जस्ट सामने आपको पूरा रिवर डैम दिखता है और बहुत बहुत ही सुंदर नजारा है। एंड उसके जस्ट पीछे माउंटेन्स है, तो आपको बहुत वो अलग जगह है। फिर आप सांबर रोड से जाते हो तो आप रिवर के साथ साथ से आपकी रोड चल रही है। फिर आप पार जाते हो विच इज आप एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एक लकड़ी का पुल बनाते हैं हर साल। हर साल वो उतारते हैं, हर साल वो बनाते हैं, आप वो रिवर को क्रॉस करते हो थ्रू दैट। फिर आप दूसरे एरिया में जाते हो टिकाला जोन के, जो थोड़ा सा उसमें माउंटेन थोड़ा आपको हाइट का लगता है। तो आपके पास अलग अलग टेरेन में आप उस टाइम जाते हो, तो वो बिल्कुल अलग फीलिंग है। मतलब एक ही गेट से आपने एंट्री की एंड यू आर हाँ, सीइंग द डिफरेंट टाइप ऑफ टेरेन्स एवरी यस, टाइम यू आर रोमिंग यस, अराउंड, राइट? यस। तो आपको ग्रासलैंड्स भी दिख रहे हैं, आपको माउंटेन रोड का फील भी अलोंग आ रहा साइड है। द रिवर भी है, जब आप कांडला माउंटेन की भी तरफ दिख रहे जाओगे हैं। तो आपको माउंटेन का फील भी आ रहा है पार जाते हुए। जी, आप रिवर भी जी, क्रॉस कर रहे हो, आप सब कुछ जी, कर रहे हो इन डिकाला जोन। तो इट्स समथिंग विच इज वेरी एडवेंचरस फॉर न्यू कमर्स एंड फॉर हमारे लिए तो हम चलते ही रहते हैं, भागते ही रहते हैं कि ढूंढो टाइगर, ढूंढो लेपर्ड, ढूंढो हाथी ढूंढो। एंड गर्मियों में आपको ग्रासलैंड में जब हाथी मिलता है तो इट्स जी, ब्यूटीफुल क्योंकि आपके पीछे पूरा माउंटेन व्यू है। सनसेट बिल्कुल रिवर हाँ, के डैम पे हो रहा है, तो आपके पास सारी वाओ, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन पूरे रिवर में पहुंच रही है सन की। इट्स एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। और आप वाओ! अगेन आई कैन स्लाइड ओनली हाथी की इमेजिन तरह। दैट लैंडस्केप सिटिंग हियर कि वो एलिफेंट्स वॉक कर रहे हैं, ग्रासलैंड है, पीछे में माउंटेन है। यस, It must be really amazing to see that, right? यस, So I would request our viewers,
do visit Corbett and especially Dikala if you get the bookings, and you have to be very quick for the bookings. बहुत पहले book करना होता है उसे, but please जाइए because it will be a life changing experience for you. It is. चलिए आगे बढ़ते हैं। श्री रूपा जी, अब कॉर्बेट पहुंचे कैसे, लाइक ट्रैवल? सो कॉर्बेट रीच करने के लिए आपके पास देर इज ट्रेन एंड देर इज बाय रोड। दिल्ली से अराउंड Yeah. 5 घंटे ट्रेन दिल्ली से ओवरनाइट चलती है एंड और आप या फिर बरेली भी फ्लाई कर सकते हो। बरेली से भी आप बाय आफ्टर दैट बाय टैक्सी आ सकते हो। तो So from Delhi you need to go to Ramnagar, am I right? यस Okay. Okay. So Delhi to Ramnagar आपको ट्रेन मिल जाएगी? ट्रेन मिल जाएगी। 2 टाइम चलती है दिन में, एक बार जी। दिल्ली से शाम को और रात को, यहाँ से मॉर्निंग एंड नाइट। एंड And या फिर आप बरेली बाय फ्लाई रोड भी करके जा सकते हैं? बाय रोड भी जा सकते हैं। 5 घंटे लगते हैं बाय रोड। और या अच्छा। फिर आप बरेली भी लैंड कर सकते हो। बरेली से भी भागे आप बाय रोड आ सकते हो। ओके, सो बरेली से हमें कितना टाइम लगता है अराउंड कॉर्बेट 3 पहुंचने के लिए? आवर्स, आराम 3 3 साढ़े आवर्स 3 घंटे तो तो लगेंगे। मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर टाइमिंग है, सिमिलर दिल्ली से टाइमिंग है, थोड़ा डिपेंड ज्यादा करता है। लगता है। जनरली जो लोग बॉम्बे से आते हैं वो बरेली लैंड कर जाते हैं, उनको थोड़ा टाइमिंग ऑफ द फ्लाइट बेटर रहता है। तो ओके। यस, सो जनरली लोग करते हैं ऐसा। और प्लस या फिर आप दिल्ली से आते हो, मल्टीपल फ्लाइट्स हैं। दिल्ली से आपको 5 ओके। घंटे लगते हैं पहुंचने में रामनगर, इफ यू कम बाय रोड। ओके, या so the best is like either take a train from Delhi to Ramnagar, या or if you're traveling from Mumbai or Central India, best is take a flight to Bareilly, या right? And then from there is 3 hours travel. Otherwise, you can go via Delhi any time, and या that takes you 5.5 hours या depending on the traffic. देयर इज एन एयरपोर्ट Delhi का ऑल्सो। या देयर इज एन yeah, एयरपोर्ट ऑल्सो बाय द नेम ऑफ पंतनगर, but Pantnagar. that doesn't run daily. एंड Okay, उससे 1.5 घंटा लगता है कॉर्बेट पहुंचने में, रामनगर आने में। अच्छा, तो वो भी आप okay. कर सकते हो अगर आपके पास उस फ्लाइट का ऑप्शन आ जाता है तो। So if somebody is traveling to Nainital, right? हाँ जी। So they can do Corbett in between, right? या दे कैन डू कॉर्बेट इन नैनीताल। बहुत लोग करते हैं, अब तो बहुत लोग नीम जी, करोली बाबा एंड कॉर्बेट करते हैं। तो okay, कैंची धाम, सो कैंची धाम एंड कॉर्बेट करते हैं। okay, या okay. That's great insight because now our viewers will know कि कैसे वहाँ पे जाना है, and then आप लोग नीम करोली बाबा एंड कॉर्बेट कर सकते हैं, या फिर आप कॉर्बेट करके ऊपर नैनीताल, रानीखेत, कसौनी कर सकते हैं, या फिर वापस। मुक्तेश्वर जा सकते हैं आप, बिनसर जा जी, सकते हैं, नौकुचिया right. ताल जा सकते हैं, So भीमताल you जा can सकते see the हैं। Himalayan peaks also, यस यस and either like while going to the to Nainital and above, you can do Corbett first. तो पहले आप जंगल हाँ देखोगे, बाद में you go towards the Himalayan peak, एग्जैक्टली or you can do it in return also, right? यस एग्जैक्टली। Okay, 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 great. That was nice insights, Sri Rupa ji. Thank you so much. चलिए आगे बढ़ते हैं। Before Srina Villa started, right? या What was your life like? I am a fashion designer by education and by profession earlier. मैंने 9 साल फैशन डिजाइनिंग की स्ट्रीम में काम किया है। सो एंड बिफोर श्रीनाविला स्टार्टेड, एक्चुअली दिस होल स्टार्टेड जब कोविड आया तो मैंने ये बंद किया फैशन डिजाइनिंग का सारा काम। और आई स्टार्टेड, आई वाज हियर इन कॉर्बेट। हमने एक छोटा सा घर लिया बिकॉज माय पेरेंट्स वर लाइक कि सेफ रहना है तो हम कॉर्बेट में रहेंगे। तो एक छोटा सा घर लिया, हम यहाँ आ गए। देन मैंने एक छोटा प्रॉपर्टी, बुटीक प्रॉपर्टी ऑन लीज ले लिया ऐसे ही कि चलो लेट मी ट्राई समथिंग न्यू, क्योंकि मैंने फैशन डिजाइनिंग का काम तो बंद कर दिया था। तो वो जी, बंद करके आई टुक अ प्रॉपर्टी, उसको 2-2.5 साल चलाया ऑन लीज। थोड़ा एक्सपीरियंस लिया ऑफ हॉस्पिटैलिटी, क्योंकि इस स्ट्रीम से मेरे को कोई एजुकेशन नहीं है इस बारे में। एंड जी, एक्सपीरियंस से सीखती रही एंड देन आई स्टार्टेड बिल्डिंग श्रीनाविलास। सो उसको साथ में कंस्ट्रक्ट करना शुरू किया एंड देन हियर श्रीनाविलास ओपन इन मार्च इन 2025। 2025. यस Okay, okay. And
लव ऑफ द जंगल एंड वाइल्ड लाइफ, ये आप हाउ डिड यू कनेक्ट विद दैट, एंड टू बी मोर स्पेसिफिक व्हेन, ये कब हुआ? सो मैं बचपन से कॉर्बेट आती रही और काफी जंगलों में जाती रही. माय डैड इज अ ही इज वेरी फॉन्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ. तो वो मुझे लेके जाते रहे, हम मैं और डैड हमेशा भागते रहे जंगलों में. तो बचपन से आई वाज लाइक 40 डेज ओल्ड सिंस माय पेरेंट्स स्टार्टेड टेकिंग मी टू द फॉरेस्ट. सो उससे डेवलप होता रहा इंटरेस्ट. बहुत ज्यादा इंटरेस्ट डेवलप हो गया कि नहीं जी. व्हेन आई वाज लाइक आई थिंक इन 10th और समथिंग, माय डैड गॉट मी अ कैमरा कि फोटोग्राफी सिखाता हूँ. तब यहाँ पे कैमरास मिलते नहीं थे. करोल बाग में एक शॉप पे कैमरास मिलते थे, तो डैड ने वहां से एक कैमरा जी, लेके दिया. उस टाइम वो रील वाले कैमरा होते थे. एंड यूज्ड टू टेल मी, देखो ये रील में 33 या 36 शॉट्स हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं होंगे, सो यू हैव टू क्लिक अकॉर्डिंगली. सो वहां से कहानी शुरू हुई. एंड ओके, यस, तो फोटोग्राफी सीखी उसी से, क्योंकि उस चीज को तो आज की डेट में हम लोग तो रॉ खींच के एडिट कर लेते हैं. उस टाइम जी, तो नहीं कर सकते थे. आपको अपना एक्सपोजर भी सही रखना होता था, आपको अपना आईएसओ भी सही होना चाहिए, क्योंकि ब्लर आ गया तो फोटो नेगेटिव में जाके ब्लर ही आएगा, आप कुछ कर नहीं सकते ब्लरी उसमें. है, कुछ नहीं कर सकते। तो यस, तो वहां से स्टार्ट हुआ पूरा जर्नी. जंगल से बहुत ज्यादा अटैचमेंट है. और हर बस ये है कि कहीं जाना है तो जंगल जाना है. टू दैट लेवल आई मेट माय हस्बैंड इन द फॉरेस्ट. हम कॉर्बेट में ही मिले. ओह! So, अच्छा, ओके, तो इंटरेस्टिंग। वहीं से हमारी कहानी शुरू हुई. तो इसलिए एंड श्रीना विलास भी कॉर्बेट आ गया. सो माय लाइफ हैज ऑलवेज बीन अराउंड कॉर्बेट सिंस चाइल्डहुड. सो इट्स लाइक अ पार्ट ऑफ मी. मेरे को तो सब कहते हैं कि ये तुम्हारा असली घर है, दिल्ली तुम्हारा घर नहीं है. That is there. सो श्रीरूपा जी, अभी आपने बताया यू मेट योर हस्बैंड इन कॉर्बेट, तो थोड़ा Yes. वो स्टोरी बताइए, कैसे आपकी लव स्टोरी शुरू हुई कॉर्बेट में? तो एक बेसिकली एक टाइगर मर गया था, जो मेरा बहुत फेवरेट टाइगर था. उसको म्याऊ बोलते थे. इट वाज अ मेल म्याऊ, टाइगर. हाँ, ओके, डिकाला में ग्रासलैंड्स में मिलता था ज्यादातर. एंड वो उसकी डेथ हो गई, तो उससे मैं बहुत ज्यादा शेकन थी कि सडनली ऐसे कैसे, मतलब क्या हो गया ऐसा, तो आई उसी बात उसी टाइम पे दौरान में हमारी बात होनी शुरू हुई. तो एंड देन वी मेट. तो बस फिर बात बन गई. यस, तो वो एक बेचारा टाइगर जो मरा, उसकी वजह से हम कनेक्ट हो गए. तो ओह, ओके, यस, तो फिर हम मिले. फिर हम नाइस, हमारा हनीमून भी जब हम शादी के बाद गए, तो हम सारे ऑलमोस्ट हमारे फेवरेट नेशनल पार्क्स गए. लोग जाते हैं इधर वाओ! उधर. तो हमने 28 डेज ऑफ बैक टू बैक सफारीज करी. तो दैट मस्ट बी अ वेरी टायरिंग हनीमून, आई वुड से। हमने 28 बहुत सारे days to पार्क. all national parks and doing day and night safaris on a honeymoon. I could यस, imagine like how tired you guys must be looking like, you know? यस, वी कवर्ड बांधवगढ़, कान्हा, तडोबा, रणथंभौर. तो हमने काफी कुछ कवर किया था उस टाइम. कॉर्बेट एक हफ्ता रहे हम. तो अच्छा, हाँ, तो उस टाइम हो सकता था, तो अब किया. तो उस टाइम 28 डेज इन द फॉरेस्ट वाज आवर डिटॉक्स फ्रॉम द बेडिंग. wow. 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 And tell us more about like, you know, how your life goes these days. इतना सारा सब मैनेज करना है because uh, running a property in a remote area wherein the facilities are less because it's close to the jungle, you cannot have all of kind of ultra luxury things around there. And एक 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 प्लेस को रन करना फॉरेस्ट के बीच में इज नॉट ग्लैमरस एवरी डे, राइट? सो जो लोग इंस्टाग्राम पे देखते हैं और जो रियल पार्ट है उसके बारे में बताइए, व्हाट काइंड ऑफ चैलेंजेस यू फेस? सी, बिकॉज हम जंगल में रहते हैं, हमें बहुत चैलेंजेस आते हैं. एक्सटेंडा विलास इज समथिंग विच इज नॉट लाइक अ रेगुलर होटल और रिजॉर्ट, जहाँ पे आप 50 कमरे हैं या 30 कमरे जी, हैं. एक पूरा फुल फ्लेज्ड वो है. एक ये बुटीक प्रॉपर्टी है जो आई फील कॉर्बेट में मिसिंग थी. एक ऐसी चीज जो आप प्रॉपरली कनेक्ट कर सकते हो कॉर्बेट में.
क्योंकि ज़्यादातर आप जो प्रॉपर्टीज़ में जाते हो वहाँ पे टू एंटरटेन द गेस्ट वो कभी फ़ोक डांस कर रहे होते हैं, कभी म्यूज़िक चल रहा होता है, कभी कुछ हो रहा होता है, यू नो, बिकॉज़ एवरीबॉडी इज़ इन द बिज़नेस, दे नीड टू डू समथिंग लाइक दैट टू रन। एंड आप इतने ज़्यादा स्केल को कैटर करते हो कि आपको ये करना पड़ता है। इट्स नॉट जी, समथिंग, बट एट Srina आई एम कंप्लीटली अगेंस्ट इट। तो मुझे लगता है कि अगर आप जंगल आ रहे हो तो आपको डीजे की जगह चिड़ियों की आवाज़ सुननी चाहिए। और एब्सोल्युटली, रात को अगर आप सर्दियों में बॉनफायर के साथ आप स्पॉटेड आउलेट या जंगल आउलेट को ढूँढना शुरू करना चाहिए। हमारे यहाँ बहुत किस्म के आउल्स मिलते हैं, नाइट जार को ढूँढना चाहिए। आई फ़ील कि अगर आप जंगल आ रहे हो तो आपको जंगल से कनेक्ट होना चाहिए। तो मेरे यहाँ राइट, मैं थोड़ी स्ट्रिक्ट हूँ, मैं 10 बजे के बाद गाने नहीं बजाने देती। तो तो मेरे को ऐसा फ़ील होता है कि अगर एक एक बुटीक प्रॉपर्टी ऐसी होनी चाहिए जो आपको बाहर रह के भी, अगर आप लग्ज़री में रह रहे हो, पर आप जंगल से कनेक्टेड हो। वो एक फीलिंग आनी चाहिए, जो दैट इज़ द होल मोटिव ऑफ Srina Villas, to get people aware of wildlife, aware of nature, aware of, you know, that अगर नहीं होगा ये तो हम कहाँ जाएँगे? सो इट इज़ राइट, समथिंग वेरी इम्पोर्टेंट, एक पूरा सिस्टम हिल जाएगा। तो आई फील कि Srina Villas has been my baby on only getting, स्पेशली द किड्स जो यहाँ आते हैं, मैं उनसे बात करती हूँ, उन्हें एजुकेट करती हूँ ऑन वाइल्ड लाइफ और कैसे होता है, क्या होता है, अलार्म कॉल क्या होती है, अलार्म कॉल क्यों होती है। तो जी, सो उस सब के बारे में आई फील कि आप हम वाइल्ड लाइफ मूवीज जरूर दिखाते हैं कि जिससे आप एजुकेटेड रहो थोड़ा इस बारे में, क्योंकि देखो बहुत लोगों को नहीं पता होता, बहुत लोगों को ये तक नहीं होता कि टाइगर को शेर नहीं बोलते हैं, बाघ बोलते हैं। जी, तो बाघ बोलते हैं, जी हाँ। तो मोस्ट ऑफ द पीपल टाइगर को शेर ही बोलते हैं, यस, अनलेस पर यू आर अ लायन को नेचर शेर लवर बोलते और हैं और इनटू टाइगर को या बाघ बोलते हैं। बहुत जी सारे हाँ, लोग आते हैं जिनको ये नहीं पता होता। नहीं तो पता होता है। यस, तो इट्स अ सिंपल थिंग कि अगर आप एजुकेट नहीं करोगे, स्पेशली आप यंगर जनरेशन को नहीं करोगे, तो हम अपने जंगल नहीं बचा पाएंगे। और राइट, जंगल बचाने के लिए हमें ये करना पड़ेगा, किसी को तो करना पड़ेगा। तो सो दैट इज देयर। ओके सो श्रीरूपा जी आप अभी बात कर रहे थे बुटीक प्रॉपर्टी, सो थोड़ा इसको हमारे व्यूअर्स के लिए इलैबोरेट करिए, व्हाट इज़ अ बुटीक प्रॉपर्टी? तो सर हमारे प्रॉपर्टी में सिर्फ 6 रूम है। बहुत जी, हमने मतलब क्यूरेटेड टुवर्ड्स नेचर ही बनाए हैं। हमारे हुँ, मतलब इवन फ्रॉम द डेकोर ऑफ द रूम इट्स वेरी टुवर्ड्स द नेचर एंड बट लग्जरी दी है, हर रूम में लग्जरी है, हर रूम में मतलब आपको किसी को प्लंज पूल चाहिए तो वो है। हमारे 2 बहुत इंटरेस्टिंग रूम्स हैं जिसमें हमने ओपन टू स्काई वो दिया है, बाथ टब्स भी दिए हैं। साथ में जी, एक हमने ग्लास सीलिंग वाले बेड्स दिए हैं। जिससे आप रात को ओके, स्टार गेजिंग कर सको। जब हम लाइट्स ऑफ वॉव! करते हैं, तो आप अपने बेड से बैठे हुए स्टार गेजिंग कर सकते हो। सो जी, हमने लूनर इक्लिप्स देखा था ऐसे बेड पे लेटे-लेटे। वॉव नाइस! तो यस, तो थोड़ा-सा जंगल से ही रिलेटेड बनाने की कोशिश करी है एंड इट्स जस्ट अ 6 रूम प्रॉपर्टी, तो इसलिए कोई इतनी भीड़-भड़क्का नहीं होती है। एंड आई पर्सनली ट्राई टू गिव ईच एंड एवरी गेस्ट माय अटेंशन एंड ट्राई टू टॉक टू देम इंडिविजुअली, ईच वन ऑफ देम, जिससे एटलीस्ट कुछ तो फर्क पड़े। सो यू नो जनरली क्या होता है, आप बड़ी प्रॉपर्टीज में जाते हो या कहीं जाते हो तो आपको, आप बस जाते हो, आप अपना स्टे एंजॉय करते हो अपनी फैमिली के साथ और आप आ जाते हो, दैट्स इट, या यही होता है। बट अगर आप जी, यहाँ आते हो तो आपको यहाँ आके आप अपनी फैमिली के साथ तो एंजॉय करते ही हो, बट प्लस आई एम देयर टू हेल्प यू अंडरस्टैंड वाइल्ड लाइफ, टू हेल्प यू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क। एंड बहुत चैलेंजेस होते हैं हमारे लिए, कभी कोई, क्योंकि ये जंगल है, हमें कभी कभी अभी पीछे ही देवर सेट ऑफ फॉरेनर्स स्टेइंग हियर एंड सडनली हमें बहुत ज्यादा आवाज आनी शुरू हुई, तो हमने देखा कि बिल्कुल टस्कर हमारे फेंस पे खड़ा है। तो ओह! अब वो भी डर गए कि भई अंदर आ हुँ, जाएगा। तो वी वर हुँ, हैड टू अभी अब क्या करें, अब तो हम जंगल में हैं, तो जंगल तो उन्हीं का है। तो वी हैड राइट, टू यस, तो वी हमने जैसे-तैसे उसे थोड़ा भगाया, साइड कराया, गेट बंद करे, जिससे कोई प्रॉब्लम हुँ, ना हो। तो जी, बहुत बार ऐसा होता भी है, हमने एक मचान बना रखा है व्हिच लुक्स इनटू द फॉरेस्ट।
सो वहां से ओके। हमने टाइगर भी देखे हैं. देयर इज अ फैमिली रेजिडेंट फैमिली हियर विद द मदर विद 2 cubs. तो वो ऑफन दिखती रहती है. तो हमने वो स्पेशली बनाया है जिससे लोग देख सकें, बाहर रह के भी आप एक्सपीरियंस कर सको. बाकी So as like I understand, you have made a kind of business model which is like less number of guests, but more attention to the detail and customization according to them, right? यस. At the यस. same time, not compromising the luxury, right? So यस. luxury तो है, लेकिन आपको ये भी देखना है कि आप नेचर से कनेक्ट कैसे हो सकते हो, राइट? एग्जैक्टली. इट्स नॉट लाइक ए अल्ट्रा लग्जरी सारी चीजें कंक्रीट की बनी हुई है, इस टाइप का नहीं है. इट इज मोर क्लोज टू नेचर यस. एंड still you get comfort and luxury, and you get to learn a lot of things about the park, the wildlife, and other things that you guys are passionate about, यस. right? See, Okay, हमने that when is, we started here, we had even planted more than 4,000 plants and trees here. क्योंकि and अलग-अलग किस्म के, so that people know कि अलग किस्म के yeah, पौधे भी होते हैं. It's not that भी same होते हैं. और ये typical मोस्ट resort. ऑफ द टाइम हम जंगल में जाते हैं तो बेसिकली वी डोंट केयर अबाउट व्हाट टाइप ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज एंड फ्लोरा को थोड़ा सा हम इग्नोर करके सिर्फ फौना की तरफ जाते हैं ऑल द टाइम. पर सर आप फ्लोरा को इग्नोर कर दोगे तो आपको जब छाया चाहिए होगी ना तो फ्लोरा होगा नहीं. Exactly. So this is very good. Like you guys have planted so many trees, and then you tell about this. ये tree है, Yes, इसका speciality ये है. ये plant है, इसका speciality ये ऐसा दिखता है, because हमारे exactly. बच्चों को तो वो पता ही नहीं है, right? Exactly. We even started कि whenever we have a sold out date, जब भी, तो हम 3 पेड़ और लगाएंगे. चाहे कहीं भी लगाएं, चाहे Okay, जंगल में लगाएं, चाहे प्रॉपर्टी में लगाएं. So on every we will keep planting till the time we are sold out. Every time we are sold out, we plant 3 trees. तो at least आगे जाके 20 साल बाद लोगों को थोड़ी छाया तो और मिलेगी. lovely. That's a very beautiful thought. And श्री रूपा जी, चलिए बात करते हैं आपकी entrepreneurial journey के बारे में. Take us to the first day of Srina Villas. क्या हुआ था? So the first day of Srina Villas, we opened on Holi, and Yeah. I was blessed that most of my family was also here with me. एंड हाँ, जब फर्स्ट डे तो बहुत सारा कमोशन हुआ क्योंकि जस्ट खोला तो बहुत सारे चैलेंजेस आ गए क्योंकि वी डिडंट हैव अ टेस्ट रन, बस खोल दिया. तो तो इससे बहुत सारे चैलेंजेस आए, बहुत प्रॉब्लम्स हुई. कभी कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कभी कुछ प्रॉब्लम हो रही है. बट ऑफ कोर्स मुझे 2-2.5 साल के एक्सपीरियंस से वो हेल्प मिल गई कि मैं उसको सट सट सॉर्ट कर पाई. व्हेन आई Okay. स्टार्टेड हॉस्पिटैलिटी एंड मेरा फर्स्ट गेस्ट उस प्रॉपर्टी में जो मैं पहले रन करती थी, दे वर पीपल फ्रॉम बैंगलोर एंड दे यूज्ड टू वर्क इन Amazon. एंड दैट वाज माय फर्स्ट. और मुझे कुछ नहीं आता था. मुझे जितना मैं होटल्स में रही थी ना, मैंने बस उतना एक्सपीरियंस गैदर किया था कि ये एक्सपीरियंस जो मुझे मिला है वो गेस्ट को देना है. तो माय जी. फर्स्ट थिंग वाज एन अपॉलॉजी लेटर इन द रूम कि आई एम सॉरी बट दिस इज लाइक माय फर्स्ट, यू आर माय फर्स्ट क्लाइंट, दिस इज माय फर्स्ट वेंचर, एंड अगर कुछ गलत हो गया तो आई एम रियली सॉरी. दिस वाज लाइक अ beforehand, before they even thought, then they said कि मैम आपने पहले ही सॉरी बोल दिया यार, अभी तो कुछ गलत ही नहीं हुआ. मैं कहा सर अगर कुछ हो कुछ नहीं हुआ. जाता तो मुझे पता नहीं था. मैं उस टाइम सॉरी बोल के आपको बोलती कि मुझे नहीं आता है तो आप बोलते कि यार आप पहले बता देते. तो इसलिए मैंने हाँ, कहा कि मैं पहले ही बता देती हूँ कि मुझे नहीं आता है. नहीं आता है. They must be thinking, अरे यार हमारे ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा है ये तो. तो दे वर लाइक यार मतलब आई लाइक दिस ऑनेस्टी. मैं कहा सर देखो जो नहीं आता है तो नहीं आता है, सीखना सबको पड़ता है. अब धीरे धीरे जी. धीरे धीरे सब सीखा. सो जब श्रीना विलास खोला तो फर्स्ट 3-4 डेज तो बहुत चैलेंज आए. बहुत मतलब कभी किचन में प्रॉब्लम हो रहा था, कभी रूम में प्रॉब्लम हो रहा था, बिकॉज इट वॉज लाइक अ टेस्ट रन. बट आफ्टर लाइक 4-5 डेज एवरीथिंग वॉज सॉर्टेड, एवरीथिंग वॉज. सबसे बड़ी यहाँ प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी इलेक्ट्रिसिटी की, क्योंकि अच्छा. यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ऑफ कोर्स आपका ग्रिड रामनगर में है. कभी पेड़ टूट जाता है तो तार टूट जाती है, कभी हाथी आ जाता है हाँ. तो तार टूट जाती है, कभी मतलब कुछ भी होता है तो इलेक्ट्रिसिटी इम्पैक्ट हो जाती है.
तो इलेक्ट्रिसिटी का तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाता है यहाँ पे। तो जी, क्योंकि इट्स वाइल्ड लाइफ और वो इतना लंबा ग्रिड से चल के आ रहा है, इट इज़ नॉट देयर फॉल्ट, वो बेचारे तो कोशिश कर ही रहे हैं कि हमारे पास सब कुछ पहुँचे। बट कभी-कभी हो जाता है, कभी मतलब बहुत ज़्यादा हवा चल गई, कुछ हो गया, कहीं से तार टूट गई। तो वो जी। सब चैलेंजेस हमें एवरीडे चलते रहते हैं। कभी पानी की प्रॉब्लम आ जाती है, कभी कुछ हो जाता है, सो इट्स देयर। बट नहीं, ऐसा नहीं है कि हम लोग कवर नहीं कर पाते या कुछ नहीं है। हमने जनरेटर्स लगा लिए हैं, हमारे पास खुद का सप्लाई है, सो ऐसा प्रॉब्लम होती नहीं है। बट हाँ, इनिशियली चैलेंजेस बहुत आए थे, बट नाउ इट्स ऑल गुड। And and how was the first year like in terms of finances? Stena Villas has been blessed with our old clients. जितने भी दाईजार में हमने clients मेरे आए थे, they as soon as they came to know it's my new own property now. So it has been Yeah. blessed. It has been blessed with a lot of new people. हमारे को अभी तक कोई इतने बहुत bad reviews या कोई गलत feedback आया नहीं है। हम it's been running smoothly and we hope and finger crossed that it runs better and better every time. So इसलिए यही है। तो yeah, it is you can say that it's running fine, it's running properly, and we are blessed with the old clients coming back to us because हमारा प्राइस ब्रैकेट ही चेंज हो गया फ्रॉम द ओल्ड टू न्यू, बट हमारे क्लाइंट वही रहे। सो दैट इज अ बिग achievement in 2.5 years that our clients didn't move out and stayed with us with the new property. Nice, nice. And for every entrepreneur, there is a low point where उनको ये क्वेश्चन आता है कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ, मुझे बंद कर देना चाहिए, ठीक है? एंड आई एम श्योर आपके साथ भी कभी ये मोमेंट आया होगा और या ऐसी कोई मिस्टेक हुई होगी जिसके बाद में आपने सोचा होगा कि ये ख्याल आया होगा कि शायद मुझे ये नहीं करना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, इट्स नॉट माय कप ऑफ टी। एंड हाउ डिड यू टॉक योरसेल्फ आउट ऑफ दैट? वो एक्सपीरियंस के बारे में कुछ शेयर करिए। बहुत बार होता है, बहुत बार थक जाती हूँ बिकॉज समटाइम्स यू नो व्हाट हैपेंस, योर फैमिली स्टेज इन दिल्ली, माय फैमिली इज इन दिल्ली, माय हस्बैंड, माय ओके, पेरेंट्स, माय डॉटर, सब दिल्ली में, मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। तो बहुत बार होता है कि यू नो मुझे ऐसा लगता है यार किस लिए, क्यों, कोई तो है नहीं यहाँ, एंड लो फील होता है। फिर बहुत सारे दोस्त आ जाते हैं, अब तो सीजन खुल गया है तो आ जाते हैं हर रोज कोई ना कोई टू चेयर मी अप। बट जैसे ऑफ सीजन होता है या जब दिखाला बंद होता है तो वाइल्ड लाइफर्स बहुत कम आते हैं। तो फिर ऐसा लगता है कि यार कि मैं यहाँ कर ही क्या रही हूँ, घर चली जाती हूँ। फिर मुझे लगता है घर चली गई तो ये बंद हो जाएगा, तो इट्स थोड़ा सा डाउन जाता है। फिर स्टेप अप कर लेती हूँ अपने आप को, वो जो नहीं यार करना ही है, अब तो ठान लिया। तो इट्स लाइक या तो बट एक्चुअली मैं अब दिल्ली जाती हूँ तो somehow I miss the forest. मैं मेरे हस्बैंड हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं तुम आने से पहले जाने का टाइम बता देती हो। क्योंकि मुझे बट लगता बट ये तो बट ये तो ऐसा हो गया, आप जब फॉरेस्ट में रहते हो तो आप दिल्ली को मिस करते हो, फिर यस जब आप दिल्ली जाते हो तो आप फॉरेस्ट को मिस करते हो, तो फिर वो इसको बैलेंस कैसे करते हो आप? क्यों, फिर मैं जाती हूँ थोड़े दिनों के लिए दिल्ली या फिर मैं उन्हें बुला लेती हूँ। लाइक आज भी मैंने अपनी डॉटर को यहाँ बुला रखा है, दिल्ली का एक्यूआई इतना खराब है, पता नहीं 600, हम्म, मेरे हस्बैंड बताते रहते 500-600 है। सो मैं उन्हें बोलती हूँ, फिर वो मैंने कहा ठीक है मैं इसको बुला रही हूँ, स्कूल ऑनलाइन हो गया तो मैंने कहा चलो फायदा उठाते हैं इस चीज का, तो मैंने इसको यहाँ ओके, बुला लिया। यहाँ एक्यूआई 63 है, तो इट्स लाइक वाओ। तो तो इसलिए मैं इट्स जस्ट दैट कि हम करते रहते हैं, कीप कम्यूटिंग अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन। या कभी उन्हें बुला लेती हूँ, मेरे फादर एवरी वीकेंड आ जाते हैं टू मीट मी, ओके, तो उनसे मिलके अच्छा लग जाता है। तो थोड़ा 10 मिनट 15 नाइस, मिनट मिनट से उनके साथ मिलके, सी फैमिली इज ओके। वेरी एंड इंपॉर्टेंट बट वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू स्टे क्लोज टू देम, यस स्पेशली व्हेन यू आर अ एंटरप्रेन्योर, क्योंकि आपका कोई वर्किंग आवर्स नहीं है, राइट? यू मेरा आर कोई नॉट इन अ वर्किंग आवर जॉब नहीं है, नाउ। मैं 365 दिन काम कर रही होती हूँ, 24 घंटे काम हम कर रही होती हूँ। जी हाँ। दैट्स द लाइफ ऑफ अ एंटरप्रेन्योर, एवरीवन यस, सेज दैट, राइट? मेरे पास कोई वर्किंग आवर नहीं है। जब लोग अच्छा लॉन्ग श्री, वीकेंड में छुट्टी मना रहे होते हैं, होली का लॉन्ग आप वीकेंड है, लॉन्ग क्रिसमस वीकेंड में का लॉन्ग काम कर वीकेंड रहे है, हो न्यू ईयर क्योंकि का लॉन्ग वीकेंड है, हम काम कर रहे होते हैं। काम कर रहे कि लॉन्ग वीकेंड है। हो। So you get only छुट्टी in off season, right? नो एक्चुअली मैं ऑफ सीजन में भी छुट्टी नहीं मिल पाती है
क्योंकि फिर हम ओके, प्रॉपर्टी को अपकीप रखने में उसको टाइम लग जाता है। फिर मेंटेनेंस एंड एवरीथिंग, या मेंटेनेंस भी है, गेस्ट तो आते ही रहते हैं, ऑफ सीजन में भी देयर आर लॉट ऑफ पीपल हू कम फ्रॉम दिल्ली, हमेशा आते ओके। रहेंगे दिल्ली से, यहाँ पे बरेली से, लखनऊ से, हम्म, क्लाइंट तो आते ही रहते हैं। हम्म, तो टाइम ओके। मिल नहीं पाता है। इस ऑफ सीजन मैंने सोचा था मैं बहुत दिल्ली रहूंगी, बट जी, हो नहीं पाया। कुछ नहीं हो पाया। Okay, and Sri Rupa ji, role of your team in running Srina Vilas. आई एम नथिंग विदाउट माई टीम। मैं क्या कर लूंगी? आई एम जस्ट द ओनर, आई कैन मैनेज थिंग्स, बट मैनेज थिंग्स इज द थिंग्स तो वही बना रहे हैं ना, कर तो वही रहे हैं। मैं शायद सुपरवाइज कर सकती हूँ, but without my team I'm nothing. Without like without my chefs, without my supervisor like Rawat ji, without एक लड़का मेरे पास यहाँ पर तब से है जब से मैंने वो प्रॉपर्टी स्टार्ट करी थी, वो मेरे साथ यहाँ पे भी आ गया, जगदीश। सो दे आर लाइक फैमिली। अब वो भी एक पार्ट ऑफ फैमिली है, अब उनके बिना तो कुछ नहीं हो सकता। आई एम फॉर देम, दे जी, आर फॉर मी। So it is part and parcel and we have to they उनको मैं कोई डिस्कम्फर्ट नहीं पहुंचा सकती, एंड दैट्स माय रोल। एंड बिकॉज ऑफ देम वी श्रीना विलास गेट्स गुड रिव्यूज। खाना अच्छा बनाते हैं, क्लीनिंग अच्छी रखते हैं, टाइम से सब जी, कुछ होता है। तो विदाउट कुलदीप, विदाउट रावत जी, विदाउट जगदीश, मेरे पास 2 जगदीश है, विदाउट शानू, विदाउट चंदन, एक इतना अच्छा लड़का मिला है मुझे। सो इनके बिना मैं कर ही नहीं सकती, मतलब दे आर लाइक माय बैकबोन। yeah, दे इनके इनके बिना तो क्या ही कर लूंगी मैं तो खाना नहीं बना सकती, मैं तो हाउसकीपिंग नहीं कर सकती। हाँ, मैं आई कैन टॉक टू द गेस्ट, आई कैन डू एवरीथिंग, बट बैक एंड तो वही है ना। आई एम द फेस, बट बैक एंड के बिना नहीं चलती ना कंपनी। सो बैक नहीं एंड चलता। तो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मी, दे आर लाइक फैमिली। अच्छा, ऐसे कुछ इंस्टेंसेस हुए होंगे जब टीम से कुछ भारी गलतियां हो गई होंगी, ठीक है? उसको हो कैसे हैंडल किया? वो एक्सपीरियंस कुछ शेयर कीजिए। हो जाती है। मैं थोड़ी शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, मैं बहुत गुस्सा भी कर देती हूँ। तो पर उन्हें पता है कि मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, तो वो कहती है मैडम तो ठीक हो जाएंगे अभी 2 घंटे में। तो बहुत डांटती हूँ, बट उतना ज्यादा रिस्पेक्ट और प्यार भी करती हूँ। बट हाँ, जब गलती हो जाती है तो फिर तो रायता जो फैलता है वो तो मुझे ही संभालना पड़ता है। दैट इज जी, देयर। सो इट इज, हो जाता है यार, एक ह्यूमन एरर तो, ह्यूमन है तभी तो एरर है ना। आपकी आपकी बात सुन के ना मुझे मेरी मम्मी की याद आ रही है कि कुछ रायता फैला दिया तो 2 थप्पड़ पड़ेंगे, बाद में 1 घंटे बाद आके प्यार भी करेगी। लेकिन ये काइंड ऑफ लाइक मदर टू देम, राइट? कि अभी रायता फैलाया तो तुमको तो डाँट पड़ने वाली है। तो दे नो कि मैं गुस्सा अमेज़िंग। करूंगी, दे नो इट। हाँ, तो बट बहुत ओकेजनली होता है कि वो ऐसा रायता कुछ फैला दे, इट्स वेरी ओकेजनल, बट दे आर वेरी गुड एट देयर वर्क, ऑल ऑफ देम। सो ऐसा ओके, कुछ, या ऐसा बहुत कम होता है कि ये कुछ रायता फैला दे और मेरे को समेटना पड़े। तो ओके, दैट इज इट। नाइस, नाइस। एंड while managing your boutique property, taking care of the guests and everything, you also need to take care of your health because you're traveling a lot. You're traveling like into the going into the jungle almost every other day. Then there's very hectic schedule at the time of say लॉन्ग वीकेंड्स और दिस थिंग, और आप बता रहे हो कि आपको तो 365 दिन काम करना होता है, छुट्टी नहीं मिलती। हेल्थ रिजीम क्या फॉलो करते हो आप? ऑनेस्टली कुछ नहीं। ओह माय गॉड। ऑनेस्टली कुछ नहीं। ओह माय गॉड। या सो बस थोड़ी सी दवाइयाँ खाती हूँ। हेल्थ तो थोड़ी सी खराब है ही, थोड़ी सी दवाइयाँ खाती रहती हूँ। एंड हाँ, मैं लाइक नचिकेता, माय हस्बैंड, इज आफ्टर माय लाइफ। वर्कआउट कर लो, वर्कआउट कर लो। पहले बहुत हेल्थ मैनिएक थी, आई वाज क्रेजी अबाउट वर्किंग आउट एंड दे आर डूइंग दिस डूइंग दैट। बट अब व्हाट हैपेंस कि लाइक दे एवरीबॉडी सेज कि यार इतनी लंबी प्रॉपर्टी है, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, इसी में 10 चक्कर मार लो। So, but अब yeah, you can say I'm a little lazy on that. But I feel कि जब मुझे बैठने का टाइम मिलता है ना, तो मेरा मन करता है कि मैं बैठ जाऊं यार थोड़ी देर, क्योंकि पूरे टाइम तो काम कर रहे होते हैं। लाइक
what happens generally during, especially during season, 5:30 गेस्ट उठ जाते हैं क्योंकि उनकी मॉर्निंग सफारी होती है। तो मैं जी। 5:30 उठती हूँ। 5:30 उठ के सब चेकआउट करके कि सब ठीक है, वो सफारी पे पहुंच गए, ड्राइवर टाइम से आ गया है, गाइड फीस दे दिए हैं, ये सब करके वो जाते हैं। हम तो उठ गए। अब तो सुबह फिर ब्रेकफास्ट बनाने शुरू हो गई टीम, सब कुछ हो गया। लास्ट डिनर खत्म होता है, 11 साढ़े 11 बज जाते हैं। फिर वो ऐसा लगता है कि यार मैं 6 घंटे तो सो लूं। तो Which is very less, honestly. 6 घंटे का sleep, you should at least sleep for 7 to 8 hours. But I feel जब पीक सीजन होता होगा तब तो मुश्किल से 4 घंटे सोने मिलता होगा आपको। हाँ, तो ऐसा होता है बहुत बार। देयर आर डेज जब काम कम होता है श्रीनगर विलास में, तब मैं ऐसा लगता है कि यार आज मैं छुट्टी ले लेती हूँ, या मेरे ओके। पास बहुत सारा बैकलॉग इकट्ठा हो जाता है क्योंकि फाइनेंशियल तो मेरे को ही देखना है, सुपरविजन जी। का सारा कुछ मैं देखती हूँ, तो ग्रोसरीज टू एवरीथिंग इज अंडर मी। ये मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि मैं किसी पे ट्रस्ट करके उसको पूरा फ्री हैंड नहीं दे पाती हूँ। तो अब सब कुछ ही मैं देख रही हूँ, तो ये तो वन मैन शो हो जाता है इन इन दिस, कि सुपरवाइजर मैं कर रही हूँ, फाइनेंशियल भी मैं देख रही हूँ, जो सामान आना है वो भी मैं देख रही हूँ, सफारीज भी मैं देख रही हूँ। तो वो इसलिए थोड़ा-सा चैलेंजिंग हो जाता है। तो जब मुझे छुट्टी मिलती है ना, तो मेरे को लगता है हाय मैं कुछ नेटफ्लिक्स पे देख लूँ। और आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, आप तो रिज़ॉर्ट में ही हो तो आप वहीं छुट्टी करोगे, राइट? या यस। फिर आपको ऐसा फ़ील होता है कि अब मैं तो यहीं नहीं, रहती मुझे हूँ, अब कहीं बहुत बार किसी ऐसा और फ़ील रिज़ॉर्ट में। होता है कि मुझे नहीं रहना है यहाँ पे अभी, क्योंकि मैंने बहुत काम करा है और मैं यहाँ रहूँगी तो ये मुझसे और काम कराएगी पूरी टीम। मैडम इधर आ जाओ, ये देख लो, मैडम उधर आ जाओ, वो देख लो। तो मैं भाग जाती हूँ। ओके। तो मैं अभी जैसे पीछे सैटरडे संडे माय डॉटर वाज़ हियर, तो मैं या सुबह उठी एंड आई वाज़ लाइक कि इतना काम नहीं है, एंड मैंने सामान पैक किया और मैंने गाड़ी में डाल दिया, एंड दे वर लाइक कहाँ जा रहे हो? तो मैंने कहा मैं ना पीलीभीत जा रही हूँ, कल आ जाऊँगी। तो दे वर लाइक दे वर लाइक क्या है ये? अब मैडम कैसा होगा आप चले जाओगे तो? तो मैं 3 सफारी के लिए भाग गई पीलीभीत। 3 घंटे लगते हैं यहाँ से ओके। पहुँचने में। जी। ज़्यादातर वाइल्ड लाइफ़र्स जो फ़ोटोग्राफ़र्स हैं, वो पीलीभीत, हाँ। राजा जी और कॉर्बेट को लिंक कर लेते हैं एक साथ। क्योंकि राजा जी ओके। भी यहाँ से 4-5 घंटे लगते हैं, तो पूरा सर्किट अच्छा। करके चले जाते हैं। बरेली से हुँ। उतरेंगे, पहले पीलीभीत कर लेंगे, फिर कॉर्बेट कर लेंगे, फिर यहाँ से फिर राजा राजा जी जी चले करेंगे। जाके देहरादून से फ्लाई करके चले जाएँगे। ओके। तो एक ईज़ियर पूरा नाइस। सर्किट वाइल्ड लाइफ़ फ़ोटोग्राफ़र्स कर लेते हैं। तो फिर इसलिए क्योंकि पीलीभीत पास है, मैं भी भाग जाती हूँ। ओके। तो 3 सवारी करके आई, टाइगर देखा, थोड़ा-सा डिटॉक्स हो गया, वापस काम पे। अच्छा, आप श्रीरूपा जी, बिकॉज़ यू रन अ बुटीक प्रॉपर्टी, आप जब किसी रिज़ॉर्ट में जाते होंगे तो यू मस्ट बी वेरी क्रिटिकल छोटी-छोटी चीज़ में। इसने ये ऐसा नहीं किया, ये रूम में ना एक्चुअली ये में चीज़, अब ये हो गया फैसिलिटी नहीं है। अब हो गया ऐसा, क्योंकि मैं जाती हूँ तो मैं हर जगह बोलती हूँ, "अबे तू ऐसे तो कर लो, वैसे तो कर लो, थोड़ा-सा ऐसे कर लो।" तो बहुत बार होता है, लाइक जैसे मैं एक प्रॉपर्टी में जाती हूँ पीलीभीत में, होम स्टेज़ में ज़्यादातर प्लास्टिक बॉटल्स का मिनरल वाटर यूज़ करते हैं टू सर्व, क्योंकि जी। आरओ नहीं है। तो मैं इस बार भूल के आई कि यार क्यों क्यों करते हो तुम ये? एक आरओ लगा लो ना, स्टॉप पुटिंग प्लास्टिक, इतने पास रहते हो जंगल के, क्यों कर रहे हो यार ये? तो थोड़ा आरओ लगाओ, सबको आरओ का पानी भरो ना, रूम्स में आरओ रख दो, ऐसा तो नहीं है कि नहीं रख सकते हो। सो लिटिल यूज़ लेस प्लास्टिक सो दैट देयर इज़ लीस्ट वेस्ट, एटलीस्ट हम तो क्रिएट ना करें। सो दैट इज़ देयर। देखो अब एज़ अ होटल मैं नहीं भी करना चाहूँ तो मुझे रखना पड़ता है, बिकॉज़ देयर आर क्लाइंट्स हू विल से कि नहीं, वी ओनली वांट पैकेज्ड वाटर, वी वांट मिनरल वाटर, वी डोंट वांट ट्रस्टेड या आरओ। सो वो हमें करना पड़ता है, बट एज़ अ दैट्स अ लाइक अ वी हैव टू डू इट एज़ अ कंपल्शन। बट ये तो कुछ चॉइस तो दो कि इंसान को आरओ का पानी मिले, rather than हुँ। गिव पैकेज्ड वाटर ऑल द टाइम, इतना ज़्यादा प्लास्टिक। या। सो या। तो मैं तो लाइक ठीक है मैडम, मैं लगा लेता हूँ। बहुत। एंड Shrirupa ji, like people living in the cities, they dream कि we will build a place in nature, right? And आगे का हम लाइफ अपना नेचर के पास में क्लोज में बिताएंगे, जैसे आपने एक बुटीक प्रॉपर्टी रन कर लिया। What is the one reality check you want to give to them? मुश्किल है, ईज़ी नहीं है।
नाइट लाइफ नहीं है एंड बहुत चैलेंजेस आते हैं। कभी स्पेशली अगर आप बहुत रिमोट जगह जाते हो तो आपको ग्रोसरी के तक के चैलेंजेस आते हैं कि यहाँ पे इतना टाइम तक इतना, या जाओ 10 किलोमीटर नीचे जाओ, 10 किलोमीटर ऊपर आओ। जैसे वी आर जी। क्लोज टू द सिटी, बट हम 5 हुँ, किलोमीटर दूर, 4-5 किलोमीटर दूर है। कुछ चाहिए होता है तो हम तो शहर ही है ना, तो इजी नहीं है। हुँ, आपको गाँव में या किसी विलेज में या एक रिमोट एरिया में सब कुछ नहीं मिलता। स्पेशली स्मॉल टाउन्स में इतनी मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। अगर और आपको बेसिक्स भी उतने परफेक्ट नहीं बेसिक्स मिलेंगे भी ना, बहुत आपको हमेशा बेसिक है। पानी नहीं मिलेगा, हमेशा बिजली नहीं मिलेगी। बहुत यू बेसिक हैव बहुत टू कोप बेसिक विद है। दैट। एंड हाँ, जैसे मेडिकल चैलेंज है, एक रामनगर में हुँ, भी मेडिकल चैलेंज है। बहुत कम मेडिकल फैसिलिटी है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, हुँ, एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, बस दैट्स इट, खत्म होगी कहानी। तो अगर आप मेडिकली भी चैलेंजिंग होता है एक छोटे शहर में या एक छोटे टाउन में आके रहना। आपको आदत हो जाती है सिटी लाइफ की, अच्छे रेस्टोरेंट्स में वीकेंड पे जाके खाना खाने की, और जी। आप पार्टी करने की, सोशल लाइफ करने की, दिवाली पार्टीज़ की, तो ये सब यहाँ नहीं हो पाता है। यहाँ पे कुछ नहीं होता है ये सब। नहीं, ये सब कुछ नहीं होता यहाँ है। पे सिर्फ़ आपको या जंगल हो और या आप। गाँव में जब गेहूँ लग रहा होता है तो आप जाके वो देख रहे होते हो, या धान लग रहा जी, होता है तो वो देख रहे होते हो। तो आपकी लाइफ बिल्कुल बदल जाती है। इट्स नॉट कि आपको ऐसी वैसी दिल्ली लाइफ या सिटी लाइफ यू कांट एक्सपेक्ट। एंड मेरे को, आई तो लव द लाइफ हियर। तो मैं दिल्ली जाके भी ऐसे ही रहती हूँ। मैं मेरा गिने चुने दोस्त है जिनसे मिलती हूँ, और फैमिली से मिलती हूँ, दैट्स इट। मैं या ज्यादा नहीं करती हूँ, बट पीपल हु एंजॉय दैट लाइफ उनके लिए ये करना मुश्किल है। एंड कॉर्बेट एंड एंटरप्रेन्योरशिप से आपको लाइफ के कौन से ऐसे 2-3 लेसन्स मिले जो बहुत इम्पोर्टेंट? कॉर्बेट से तो लाइफ में लेसन्स तो बहुत मिले कि यू नो इन द एंड वी सी दैट ओनली वी एज ह्यूमंस आर ओनली रनिंग, नो, जानवर तो नहीं भाग रहे। कोई पागलों जैसे हरकतें नहीं कर रहे जैसे हम करते रहते। भागते जा रहे हैं। वी आर ऑलवेज रनिंग इन लाइफ, ट्राइंग टू अचीव एवरीथिंग। एवरी डे वी आर ट्राइंग टू अचीव समथिंग न्यू। वी शुड लर्न दैट देयर इज अ लाइफ बियॉन्ड रनिंग। थोड़ा सा या सुकून यू हैव और टू स्लो ठहरो। डाउन। स्लो डाउन। या देयर इज पीस। यू शुड फील द पीस। जो सिटी में मुझे लगता है दैट एवरीबडी इज जस्ट रनिंग, हर रोज सब भाग रहे हैं। सो इट्स कॉविड ने ठहराव सिखाया है, पेशेंस सिखाया है। वाइल्ड लाइफ ने स्पेशली पेशेंस सिखाया है। टाइगर ने तो इतना पेशेंस सिखाया है कि भैया तू तो रुक, मैं अपने टाइम पे ही आऊंगा। मैं अपने टाइम पे ही आऊँगा। तू बहुत कुछ भी पेशेंस कर ले सिखाया है। लेकिन आऊँगा तो मैं अपने ही समय पे। एग्जैक्टली, कॉल होती रहेगी, 4 घंटे होती रहेगी, टाइगर नहीं आएगा। फिर हम शाम को नहीं उसी आए। स्पॉट पे जाएंगे सफारी में, यार अब तो दिख जाएगा उसी स्पॉट पे, बहुत कॉल हो रही थी। तो पेशेंस बहुत सिखाई है जंगल ने, कि एक जी। पेशेंस कैसे होनी चाहिए ना इंसान में, वो टाइगर सिखा देता है। देयर इज अ लॉट ऑफ फर्क पड़ता है, व्हेन यू लिव इन द फॉरेस्ट एंड व्हेन यू लिव इन द सिटी, दैट इज देयर। तो पेशेंस तो एंड सिखाना है। okay, so that is really beautiful that you need to slow down, you need to take your time यस, and patience, right? यस। That is amazing. And Sri Rupa ji, what would you want our viewers to take away from your journey? From my journey, I will say that you should learn it's a learning process every day. Every day I meet new clients. Every day I meet new people. Every day I learn something from them. So I have learned so much on various religions, because हमारे पास हर रिलीजन के लोग आते हैं, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे मुस्लिम्स हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे बनिया हो, चाहे बंगाली हो। वी हैव लर्न सो मच। हर रिलीजन, हर हर का अपना एक पाथ है, वो किसी का टेस्ट भी अलग है। वी हैव लर्न सो मच फ्रॉम जैन्स,
हम ये नहीं खाते, हम वो नहीं खाते, हम ये नहीं खाते. So Hmm. it's like I feel that it's an every time a learning process. So I feel Yeah. that people should not stop learning. कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए लाइफ में. Whether you learn it from some books, you learn it from web series, you learn it from documentaries, wherever, whatever, but you should learn. So, and I have always learned because my dad तो मेरे को गाड़ी चलाने का भी तब दिए थे जब मैंने टायर चेंज करना सीख लिया था. So, Okay. so I didn't drive the car, but I first changed the But you stepney. knew how to change the tire. Yes, and for 3 months, not even less, for 3 months he did this to me. So every day जो ड्राइवर में सबसे पीछे गाड़ी होती थी उसका टायर फ्लैट हाँ. होता था. So Okay. yeah, and बोला जाता था ये बदलेगी फिर इसको स्टेयरिंग मिलेगा. So for 3 months my dad did this. बहुत गुस्सा आया, but yeah. Wow. Wow. And Sri Rupa ji, if I say, like, imagine Sri Rupa ji 10 years back, what advice today Sri Rupa ji will give to her? I 10 years back, I was very stressed. ये आगे जाके क्या होगा लाइफ में, बहुत मतलब कोई कैसे पढ़ेंगे, कैसे ग्रो Overthinking. करेंगे, क्या होगा. आई वॉज वेरी स्ट्रेस्ड एंड उस टाइम आई थिंक 2-3 साल ही हुए थे शादी को. तो क्या फ्यूचर है, कैसे होगा, बहुत स्ट्रेस होता था. तो बट आई जस्ट फील कि यू नो डेस्टिनी इज रिटन. मेरे को कभी नहीं पता था कि मैं अपना 9 साल का फुल फ्लरिश्ड फैशन का एक्सपोर्ट का काम बंद करके सडनली एक होटल लाइन में हॉस्पिटैलिटी में घुस जाऊंगी. कोई आइडिया नहीं था, कहीं से कोई क्लू भी नहीं था. बट इट्स जस्ट रिटन. जो होना है वो होना है. तो इतना होना है. स्ट्रेस करके कुछ फायदा नहीं है लाइफ में. सो अल्टीमेटली होके ही रहेगा. होके ही रहेगा. सो आई थिंक जस्ट लिव डे बाय डे. इट्स मच बेटर देन Yeah. यू नो देयर वाज अ सेइंग बाय आशुतोष राणा कि हम घर तो 5000 स्क्वायर फुट का बना लेते हैं पर हम यूज तो 500 स्क्वायर Absolutely. फुट करते हैं. सो जी. so that is there. So it is very important that just live day by day, each day to its own. Be grateful that you wake up the next morning with the kind of sudden deaths are happening across the world now. Just be grateful that, okay, God, thank you, I woke up today. So And Sri Rupa ji, like, your journey has been from chaos to clarity. So what does clarity mean to you today? today I'm more clear on what I actually want, what I actually desire in the future. अब मुझे एक्चुअल में पता है कि यही चाहिए था. दिस इज व्हाट आई वांटेड ऑलवेज. आई वांटेड टू बी अराउंड नेचर. आई ऑलवेज वांटेड टू बी connected while being a little disconnected. So I am connected to everybody, but when I want my time and I can just get disconnected in a click. क्योंकि यहाँ तो जब तक यहाँ कोई पहुंचेगा तो मेरा तो डिस्कनेक्शन टाइम ओवर हो जाएगा. जी. So I feel that I'm very blessed to have this kind of life where I am also with my family a few days in a month, but I'm also with myself, which is I think very important now in these days. So when I want, and yeah, it is very, and I think what I am today is because of my father. He has made me so strong. मतलब ये स्टेपनी नहीं लगवाते या ये ऐसे अकेले रहना नहीं कराते, इंडिपेंडेंट नहीं बनाते. तो आज मुझे भी ऐसा लगता ओहो जंगल है, मैं अकेली लड़की कैसे रहूंगी. सो जी. बट विथ सो मेनी, बिकॉज ऑल स्टाफ एक्सेप्ट 2 women who are all men. So बंदे को तो वो, but my dad has never taught me, like he's never I've never got a thing called fear. डरना नहीं. So that is that what my father has taught me, that you don't be independent, you don't need to fear on anything.
And I feel that clarity is very, now that's there. And I try to get that same in my daughter. कि भाई डरना नहीं है. Yeah, You can do everything yourself. It is yeah, now in today's world, you can do everything yourself. You don't need to worry कि मेरे साथ हस्बैंड नहीं है मेरे, तो मैं घूमने कैसे जाऊं, या मेरे फादर या मेरे पेरेंट्स मेरे साथ नहीं है तो मैं बाहर कैसे जाऊं. तो आई फील दैट यू नीड टू बी दैट इंडिपेंडेंट कि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मैं कर लूंगी. So, and I drive on the highway alone. I stay alone. So it is very, very important that you now have this clarity that you can do it by yourself. You don't need people around to run your own life. that is really important in these days. Like, you have to be independent, because Yeah, if you are dependent on somebody at the time of need, then there's a problem, that's right? a problem. And also, yeah, and also being independent means you can go out, meet new people, have new experiences, and life is all about experiences, right? Exactly. See, So, the only thing I feel is that yes, you should be independent, but you should be smartly independent. You yeah, should know your own things. Like you should know your own vehicle if you drive. कि yeah, कभी सड़क पे खड़े हो गए तो क्या करना है. एंड जी, थोड़ा सा आई फील एक बेसिक मेडिसिन मेडिकल सेल्फ पता होना चाहिए कि यू नो थोड़ा सा खुद बीमार हो गए तो यू नॉट रनिंग अराउंड कि क्या करना है क्या करना है क्या करना है, 10 जगह फोन कर रहे हुए डॉक्टर पे जाना चाहिए सबको, बट आई फील इमरजेंसी मेडिकल थोड़ा सा आना चाहिए, विच इज वेरी जी, इंपॉर्टेंट. So I feel that you should, these are the 2 points if you want to live, especially in a small town, leaving your city life. So yeah, these are 2 very important things that you should know. Emergency medical and a basic of whatever you drive or however you live is your basic plan कि अगर कुछ गड़बड़ होगी तो आप कैसे खुद ठीक कर लो. So which is very, right. very important. Wow. Those are beautiful insights. It's been a wonderful conversation with you, Sri Rupa ji. Thank you so much for joining us today. Thank you, Piyush, for having me. So this was Sri Rupa Raheja's story. She runs a boutique resort, boutique property in Corbett called Srina Villas. If you want to check out Srina Villas, I'll put the link in the description. Do reach out to her. It's a beautiful property. And if you like this story, please subscribe to our channel and hit the bell icon. I'll see you next week with another interesting story.